अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों और कम आमदनी वाले अफराद को दी जाएगी तरजीह, रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। तेलंगाना में आबी मसाइल के लिए उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी जिम्मेदार, किसानों के मसाइल में इजाफा, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम। रेवंत हुकूमत मौजूदा सरकारी स्कूलों की तादाद घटाकर 4000 करने का बना रही है मनसूबा, तालीम को आम करने के बजाय सहूलतें कम कर दी गई, साबिक़ा MLC कविता का इल्ज़ाम। नीट इम्तिहान और पेपर लीक के मसले पर सियासी कशमकश जारी, मुल्क में अनारकी, स्टूडेंट्स के एहतजाज के दौरान पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सदर खड़गे की कड़ी तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हिंदुस्तानी तारीख के सबसे बड़े नौजवान मुखालिफ वज़ीर-ए-आज़म, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज पर दिया सख्त रद्द-ए-अमल। 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की तस्दीक। और एक अमरीकी F-15 तैयारे को मार गिराया गया, पासदारान इनकलाब का दावा, बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर भी हमले। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। तेलंगाना में कम आमदनी वाले अफराद के लिए इंदिरा मकानात स्कीम के सिलसिले में दरखास्तों का आगाज़ हो चुका है। पहले ही दिन कलेक्ट्रेट्स में भीड़ देखी गई। इस दौरान रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने दावा किया है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों और कम आमदनी वाले अफराद को सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। Last year itself, for the 119 constituencies in Telangana, under the leadership of our CM Mr. Revanth Reddy and our Housing Minister Mr. Srinivas Reddy, 3,500 houses have been allocated in urban and rural areas. The challenges we faced in urban areas and the solutions and the suggestions and the hardships which the Honorable MLAs faced while during the distribution of the Indiramma houses in urban areas, specifically in Hyderabad and Rangareddy districts, where the land is a scarce commodity and the land in Hyderabad or in Rangareddy is at a very premium value. So for the lower income groups and for the poor people who doesn't even have a thatched house, we have come out with a formula that we have to provide housing for the lower income groups. In that phase of things, we have come up with the concept Indiramma LIG housing scheme exactly few decades back. Under our Congress regime itself, many housing colonies have been developed, LIG for the lower income groups and MIG for the middle income group households. And while during 2004 to 2014, 2014, we have come up with other schemes for this LIG. साबिक़ा रियासती वज़ीर और BRS लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि पूरी मोटर्स नहीं खोली जा रही हैं, जिससे किसानों के लिए आबी मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी तनकीदें की और इल्ज़ाम लगाए और ये भी कहा कि रायलसीमा लिफ्ट इरीगेशन के लिए अभी भी 10 मोटर्स खोले जाना बाकी है। उन्होंने उत्तम कुमार रेड्डी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हवाला देते हुए क्लिप दिखाया। వీళ్ళు పోయినాడు 7 నడిచినాయి, వీళ్ళు రాగానే 5 అయినాయి. మళ్ళా వీళ్ళు పోయినాడు ఆ రోజు ఒక్కరోజు 7 నడిపిండ్రు, తెల్లారికెళ్ళి 5 మోటార్లు అయినాయి. ఇక ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నరికిండు కదా అంటే రేపటి నుంచి సిఈ గారు 10 నడవాల్సిందే, నేను ఆదేశం ఇస్తున్నా అన్నాడు. ఆ వీడియో ఒక్కసారి చూద్దాం. మరి మరో 1-2 రోజుల్లో 10కి 10 పంప్స్ ఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి సిఈ గారికి, మరి ములుగు సి వరంగల్ ఇద్దరు మనం చేసిన ఏఎన్సీ గారు నాకు ఎల్లుండి వరకు
అన్ని పంప్స్ ఆపరేట్ అవుతుందని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేయండి. అదేవిధంగా మరి రిజర్వాయర్స్ లో 36 చెప్పిన ఎన్ని రిజర్వాయర్లు 22 రిజర్వాయర్స్ లో మరి వివిధ దశల్లో ఆ రిజర్వాయర్ ఫిల్లింగ్ పని జరుగుతుంది. అన్ని రిజర్వాయర్లు కూడా మరి పూర్తి స్థాయిలో నింపాలని చెప్పి నేను ఇద్దరు సీఎలకు కూడా ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. మొత్తము డిజైన్డ్ ఆయకట్ ఎంత ఉన్నదో బోత్ న్యూ ఆయకట్ అండ్ స్టెబిలైజ్ ఆయకట్. పాపం ఆయన పరిస్థితి చూసింది కదా, నీళ్ళ మంత్రి 32 నెలలు అయింది, దేవాదుల కింద ఎన్ని రిజర్వాయర్లు ఆయనకు తెలియదు, పక్కకు అడుగుతుండు ఎన్ని ఉన్నాయి భయ అని. సరే ఓకే, ఏం చెప్పిండో మీరు విన్నారు. మొత్తం 22 రిజర్వాయర్లు నింపుతాం, 38 టీఎంసీల నీళ్లు ఎత్తుతాం, ప్రతి ఎకరానికి నీళ్లు ఇస్తాం. వీళ్ళ మాటలు నమ్మి రైతులు బాబు ఫోటో నార్మల్ పోసుకున్నారు. మంత్రి కదా చెప్పింది, నీళ్ల మంత్రి కదా చెప్పింది, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కదా చెప్పింది. వీళ్ళ మాటలు నమ్మి నార్మల్ పోసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, నీళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, నీళ్ళు ఎత్తడం లేదు. साबिका एमएलसी कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत हुकूमत 27,000 से घटाकर मौजूदा सरकारी स्कूलों की तादाद को 4,000 तक करने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि एक जानिब यंग इंडिया स्कूल्स के दावे और वादे किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों की तादाद कम करने के लिए भी इक़दाम किए गए। कविता ने मुतालबा किया कि रेवंत जिम्मेदाराना अंदाज में काम करें और अवाम के हक़ में बेहतर फैसले किए जाएँ. అన్నిట్లో కూడా 5% ఎక్సెస్ టెండర్ వేయడంతో ప్రభుత్వం మీద అదనంగా దాదాపుగా 600 కోట్ల బర్డెన్ పడుతూ ఉంది. అంటే టోటల్గా 11,000 కోట్లతోని ఈ రాష్ట్రంలో 72 స్కూళ్ళు కడతానని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నేను సూటిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒక ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నా, మీరు 30 నెలల తర్వాత ఇప్పుడు టెండర్ చేసి ఇప్పుడు కట్టడం మొదలు పెడితే మీరు పరిపాలించేటటువంటి కాలంలో ఈ స్కూళ్ళు పూర్తవుతాయా? అవుతుందనే నమ్మకం అయితే మాకు లేదు. ఏ స్కూల్స్ చూసినా యావరేజ్గా 2 to 3 years తీసుకుంటున్నారు కన్స్ట్రక్షన్కి. అట్లాంటిది ఇంత పెద్దగా ఒక్కొక్కటి 146 కోట్లతో కట్టేటటువంటి ఈ స్కూల్స్ డెఫినెట్గా మీరు పదవిలో ఉన్నటువంటి కాలంలో పూర్తి కాదు. పైగా ఇవి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒకటో రెవెన్యూ డివిజన్కి ఒకటో పెట్టి అన్ని ఊర్లలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఈ స్కూళ్ళల్లో చదివిస్తాం, దానికోసం బస్సులు పెడతామన్నారు. అంటే ఆ బస్సులు కూడా మీరు మెగా సంస్థకే ఇస్తారనే విషయం ఇప్పటి నుంచి అర్థమవుతున్నది. అంటే విషయం ఏంటంటే మీరు చేస్తున్నటువంటి మొత్తం ప్రణాళిక కూడా రెడ్ కార్పెట్ వేసి తెలంగాణ గ్రామాలలోకి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడానికి, అది కూడా ఎవరు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళని. ఎందుకంటే బడ్జెట్ స్కూళ్ళకు మీరు 120 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి, ఇంతవరకు రిలీజ్ చేస్తలేరు. మీరు 120 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ స్కూళ్ళకు ఉన్న అప్పులు రిలీజ్ చేస్తే ఎన్నో వందలాది స్కూళ్ళు కూడా బాగుపడతాయి. కానీ మీరు వాటిని చంపేస్తున్నారు. కేవలం కార్పొరేట్ స్కూళ్లకు మీరు ఎర్రతివా చేసి ఊర్లలోకి పిలిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. ఈ టెండర్ల విషయంలో కూడా చాలా స్కూళ్లకు ఓన్లీ 2 టెండర్లు 3 టెండర్లు మాత్రమే వచ్చినాయని చెప్తున్నారు. దానివల్ల టోటల్గా ఈ సిస్టమ్ అంతా రింగ్ అయిందని చెప్పి నేను కాదు, వెలుగు పత్రిక రాసింది. ఆ వెలుగు పత్రిక కూడా ఒక కాంగ్రెస్ ఎంపీ గారి పత్రికనే, మరి మాదైతే కాదు. కాబట్టి మరి వెలుగు పత్రిక రాసినటువంటి వ్యాసం చూసైనా ఖచ్చితంగా ఈ టెండర్లో ఏం గోల్మార్ జరిగింది, ఏం జరిగింది అనే విషయం ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకు తెలియజేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకొక మాట, తెలంగాణ రక్షణ సేన పదే చెప్తూ వచ్చింది, బడి ఎంత ముఖ్యమో గుడి ఎంత ముఖ్యమో బడి ఎంత ముఖ్యమని మేము చెప్తూ వచ్చినాం. ఇవాళ బళ్ళల్లో ఊర్లలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే, June 12 నాడు స్కూల్ స్టార్ట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ జూలై 1 నెల అయిపోయింది, ఇప్పటి వరకు కూడా స్కూల్ డ్రెస్సులు రాలేదు. చాలా చోట్ల చినిగిపోయినటువంటి బట్టలతోని పేద పిల్లలు స్కూళ్ళకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఇది కరెక్టేనా? दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के एहतजाज के दौरान लाठीचार्ज को लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने भी सख्त एहतजाज किया है। एहतजाजी रैली निकाली गई और मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और दीगर कई कांग्रेस लीडरों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। पुलिस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई और मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की गई। ఒక చీకటి రోజుగా అక్కడికి వచ్చిన నిరుద్యోగులను చిత్కబాదినటువంటి పరిస్థితి స్పష్టంగా కనబడుతోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రోహిత్ గారి నాయకత్వంలో అజరుద్దీన్ గారు, మేము కాంగ్రెస్ కుటుంబం దేశంలో రాహుల్ గాంధీ గారు చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతుగా, నిరుద్యోగులు చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి మద్దతుగా, విద్యార్థులు చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతుగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ను రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్ తోటి ప్రశ్న పత్రాల లీకేజ్ కారకుల మీద
చర్యలు తీసుకోవాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్నటువంటి కార్యకర్తల మీద, ప్రజల మీద విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసినటువంటి వారిపై చర్య తీసుకోవాలని కోరుతూ ఈరోజు వారికి సంఘీభావంగా ఈరోజు కాగడాల ప్రదర్శన చేసినాం. ఇది అంతం కాదు, ఇది ఆరంభం. నరేంద్ర మోడీ ఖబర్దార్. ఏ దేశ ప్రజలైతే నిన్ను గెలిపించారో ఈరోజు రామునికి సంబంధించిన పైసల్లో అవరికి, ఒకవైపు ప్రశ్నపత్రాల లీకేజ్, దేశంలో అరాచకత్వం, అప్రజాస్వామికం నడుస్తుంటే ఈరోజు సంతోషపడతా ఉన్నాం. ఇది మంచి రోజులు కాదు, జాగ్రత్త అనే మాట తెలియజేస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని, పోరాటాన్ని బలపరుస్తూ ఇలా మేమందరం కూడా ఆ నిరుద్యోగుల పక్షాన, పోరాటం చేసే వాళ్ళ పక్షాన నిలుచుంటున్నామనేటువంటి మాట మనం చెప్తాం. तेलंगाना के वजीर अखिलेती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जंतर मंतर पर मेडिकल के नीट एग्जाम को लेकर जारी एहतजाज के हवाले से रद्दमल दिया। उन्होंने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की सख्ती से मजम्मत की और कहा कि पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है और मोदी हुकूमत का जुल्म दुनिया के सामने जाहिर हो गया। Bad actually, whatever we saw, I mean every second reel is about that protest only, and I think it was very bad. I think the police, reacted very badly, and I think whatever the protesters, the young students were protesting, I think they have every right to protest in a democracy. But I think they were doing a peaceful protest, but I think the police, reacted very arrogantly and very badly, and then I think they beat up the children, and some of them have been beaten very badly. Some of the children are admitted in the hospital, the students actually. And I think the government needs to, the BJP government needs to answer to that. And I think whatever has happened, I think because they are asking the education minister also, has to answer those questions, when the NEET leak paper, it's a very big thing because most of the students who are really preparing for it have, been very, very dejected by the leaks, and I think the government should, BJP government should respond immediately, and I think whoever, is not done well, whoever is the culprit, they should take action against them, and especially the police people also. The police have reacted very badly, and I think if you see the way they have reacted and the lathi charge and all, I think it was totally unnecessary and called for. And then also the tear gas shells also. So I think the students were doing a very peaceful march. So I think it's a very disgraceful situation. I think the whole world is watching, and I think these things we call India as a country. Like the BJP government calls India as a country which produce, is moving forward. तेलंगाना हाईकोर्ट के एडवोकेट शेख खलील रब्बानी ने वरंगल में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जंतर मंतर पर जारी एहतजाज, नीट पेपर लीक, मुल्क के तालीमी निज़ाम, वज़ीर तालीम की जिम्मेदारियाँ, हिंदुस्तानी सियासत में ज़रूरी इस्लाहात, आईन और कानून की बालादस्ती, अदलिया के किरदार और नौजवानों की जिम्मेदारी जैसे अहम मौज़ूआत पर रद्दमल दिया। उन्होंने मुल्क में शफाफियत, इंसाफ और बेहतर तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आइए देखते हैं तेलंगाना हाईकोर्ट के एडवोकेट शेख खलील रब्बानी का ये बयान। अब अहम चीज़ ये है कि वो लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि रिजिग्नेशन करो। एजुकेशनल मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं इसका। वहाँ पे है डबल इंजन सरकार, आदमी को पूछ के वोट दला लेके डबल इंजन सरकार आके वहाँ पे अब बच्चों को अकाउंटेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो वो लोग जवाब नहीं दे सक रहे हैं। और डबल इंजन सरकार का अकाउंटेबिलिटी ये है, नीट जैसे पेपर को रोकने के लिए एक अकाउंटेबल पर्सन एजुकेशनल मिनिस्टर होना चाहिए, एक एजुकेटेड, एक नॉलेजफुल, स्किलफुल पर्सन एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। और एक बात, अब जो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आके वो लोग काम करना चाहिए। को ना एजुकेटेड है, ये लोग को एजुकेशन के बारे में क्या मालूम होगा, जो यही पढ़े लिखे नहीं है तो इनको एजुकेशन मिनिस्टर बना के बिठाए हैं हम, तो इन लोगों को क्या मालूम होगा कि एक अकाउंटेबल कैसा रहना है और ज़िंदगी क्या है, पढ़ाई क्या है। इंडियन पॉलिटिक्स में एजुकेटेड न्यू जनरेशन आना चाहिए। न्यू जनरेशन आए तो दे विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन एंड द डेवलपिंग ऑफ दिस कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए नया जनरेशन सोचेगा। ऐसी जनरेशन आना चाहिए कि उसकी जनरेशन से कोई देश के लिए सैक्रिफाइस हुआ हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। किसी की फैमिली से जान चले गई है देश के लिए, तो वो उसके लिए ऐसी सोच हो गई कि देश को कैसा आगे बढ़ाए और देश के लिए नेक्स्ट कोई भी जान नया जाए, ऐसी सोच होगी। सोनम वांगचुक इज ए असेट ऑफ द कंट्री। अगर सोनम वांगचुक को अपन मिस कर लिए तो एक असेट, देश का एक बहुत बड़ा असेट मिस कर लिए जैसा हो जाता।
इसके लिए द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। वो 21-22 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे थे, तो उनको आंसरेबल नहीं है गवर्नमेंट। तेलंगाना पुलिस महकमे में डीएसपी के ओहदे पर फायज टीम इंडिया के स्टार फास्ट बॉलर और हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद से मुलाकात की। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने वाले डीएसपी सिराज ने मुकम्मल पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उन्होंने CV आनंद को गुलदस्ता पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। CV आनंद के तेलंगाना के DGP का ओहदा संभालने के बाद सिराज की ये पहली मुलाकात थी। पुलिस यूनिफॉर्म में DGP दफ्तर पहुंचने वाले सिराज को देखकर वहाँ मौजूद अफराद हैरान हुए और खुश भी। मुलाकात के बाद मोहम्मद सिराज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर DGP के साथ दी गई तस्वीर और वीडियोस को शेयर किया। सिराज ने लिखा कि तेलंगाना के DGP CV आनंद से मुलाकात करते हुए खुशी हुई। DGP की हैसियत से अपनी नई मियाद शुरू करने पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि वो तेलंगाना के अवाम की खिदमत में मुसलसल कामयाब रहें। DSP के ओहदे पर यूनिफॉर्म में सिराज की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में इन दिनों कत्ल और दीगर जराइम के वाक़यात बेतहाशा बढ़ गए हैं। एक बड़ी शिकायत ये आ रही है कि इस तरह के मुजरिमाना वाक़यात में गांजे का इस्तेमाल करने वाले अफराद ज़्यादा तौर पर मुलविस है। शहर के कई मकामात का हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने दौरा किया और बताया कि दिन के औकात में भी विजयनगर कॉलोनी, नामपल्ली और दीगर कई इलाकों में लोग गांजे का बग़ैर खौफ ख़तर के इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजे में झगड़ों और कत्ल के वाक़यात के साथ साथ दीगर मुजरिमाना वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। क्या पुलिस इस सिलसिले में शहर में मुहिम चलाते हुए गांजा और दीगर नशावर अशिया पर रोक लगाएगी? ये एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। शेख निज़ामुद्दीन लईख, जिस तरीके से हैदराबाद में मर्डरों का सिलसिला जारी है, आप देख सकते हैं सुबह हो या शाम हो या रात हो या दिन दिवाली हो, मर्डरों का सिलसिला जारी है। उसकी वजह यह है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ी पे बैठ के गंजेटी है सो नशा कर रहा एक्टिवा पे। ये देखिए पीछे विजयनगर कॉलोनी GPO के पास का है, ये पोस्ट ऑफिस के पास का है, आप देख सकते हैं। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है और रियासत के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद नशेबी मकामात पर पानी भी जमा हो गया, जबकि मौसम खुशगवार हो गया और दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आसिफाबाद, मंछरियाल, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जगतियाल, भूपालापल्ली, कोत्तागुड़म, मुलुगु, संगारेड्डी, राजन्ना, सिरसिला, मेदक और कामारेड्डी के अलावा हैदराबाद में भी मज़ीद बारिश की तवक्कुआत हैं। बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अवाम ख़ासतौर पर नशेबी इलाकों के रिहायशियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और मुकामी इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करने की अपील की। दूसरी जानिब किसानों ने बारिश का खैर मकदम किया है, क्योंकि इससे फसलों को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। इस दौरान शहर हैदराबाद में भी रात ही से वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। और हवाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। नीट इम्तिहान और पेपर लीक के मामले पर सियासी जंग जारी है। जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज और पार्लियामेंट मार्च की तैयारियों के दरमियान अपोजिशन भी जारहाना रवैया अख्तियार कर चुका है। अपोजिशन जमातों ने मानसून सेशन के दूसरे दिन भी आज इस मामले को लेकर खूब एहतजाज किया। दोनों ऐवानों में इस मसले पर हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। इस दौरान कांग्रेस सदर खड़गे ने ऐवान में फिर एक मरतबा बयान दिया और कहा कि कल एक वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में हमारे जो तलबा पेपर लीक और नीट इम्तिहान को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और उन्हें मारा पीटा गया। खड़गे ने कहा कि आज कई स्टूडेंट्स अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये जमहूरियत है? मुल्क में अनारकी जारी है। हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना ज़रूरी है और पूरे देश के
युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स है उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे क्यों लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत को एहतजाजी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और तालीमी निज़ाम के मामले पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बड़े नौजवान मुखालिफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर उभरे। इस कदर नौजवान मुखालिफ है कि एक नाकाम वज़ीर तालीम से इस्तीफ़ा तक नहीं ले सकते। राहुल ने कहा कि एहतजाजी स्टूडेंट्स ने तालीम के जायज़ सवालात उठाए तो जवाब में लाठी और गिरफ्तारियाँ मिली। पेपर लीक करने वाले मुजरिम आज़ाद और वाजिब मसाइल उठाने वाले स्टूडेंट्स घसीटे गए। और ये हुकूमत सिर्फ नौजवानों को नाकाम नहीं कर रही बल्कि उन पर टूट पड़ी है। आज भी राहुल गांधी ने मोदी की खामोशी को लेकर दोबारा सवाल उठाए। वो ऐवान के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। That to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open. काकरोच जनता पार्टी की जानिब से जारी एहतजाज, लाठीचार्ज और अबतर सूरत हाल के दरमियान पार्टी के 2 नुमाइंदों ने मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान काकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों ने वज़ीर के सामने 3 मुतालबात रखे और वाज़ेह किया कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद ही एहतजाज ख़त्म होगा। इस दौरान अभिजीत और सूरवदास ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि मोदी हुकूमत स्टूडेंट्स के मुतालबात मानने में संजीदा नज़र नहीं आती।
देखिए 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा। इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी और एक नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। इनके मोबाइल छीने गए थे। इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। रिपोर्ट सारी थी कि आपको डिटेन भी किया गया था, क्या वो सच है? पुलिस मुझे जो गीतांजलि मैम है उनके ऊपर अटैक कर रही थी और बाद में मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई। गीतांजलि मैम जो है उनके बाल तक एक मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचे जिसका नाम संदीप लांबा है। But were you detained yesterday? I wasn't, but they tried their best. क्या और बैरिकेड लगा रहे हैं क्या? डीसीपी से बात कर लो, क्या पूछ लो उससे। अभिजीत, आप मानते हैं कि इतने सारे एक्शंस के बाद आपका प्रोटेस्ट और मजबूत हुआ? बात प्रोटेस्ट की मजबूत ही नहीं है। बात यह है कि क्या इस सरकार में दिल है या नहीं। और ये इकलौता प्रोटेस्ट नहीं जिसके ऊपर इन्होंने इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई है। इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते सभी पर ऐसी ही ब्रूटैलिटी दिखाई है। 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ रहे हैं ये लोग। एक धर्मेंद्र प्रधान जिसके ऊपर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, उसको बचाने के लिए और बच्चों का खून बहा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अड़ियल रवैया क्यों है सरकार का? सरकार इस प्रकार से छात्रों के साथ ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। सरकार नहीं, ये तानाशाह है। सरकार का दावा है कि सोनम जी को हॉस्पिटल में इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उनकी तबीयत खराब, वो चाह रहे थे कि वो सुरक्षित रहें। इस स्टेटमेंट को या इस मूव को आप कैसे? इसका जवाब तो सोनम सर ने दे दिया। उनका अनशन अभी भी जारी है। तो सरकार ने जो भी स्टेप लिया था वो किस लिए लिया था? उनको भी इलीगली डिटेन करके रखा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका अनशन तो जारी। तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब क्या है उनको? अगर उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल? तो सरकार ने इलीगली डिटेन कर रखा है। और कल की जो ब्रूटैलिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सोनम सर ने उसकी वजह से अपना अनशन जारी रखने का। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि 2 हफ्तों के दौरान ईरान जंग में तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 7 जुलाई से अब तक तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिली है, जिन्हें मुख्तलिफ नौयत के ज़ख्म आए। ये इंकशाफ एक ऐसे वक्त में आया जब अमरीका ने जुमे को ईरानी हमले से हलाक 2 फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी। वाज़ेह है कि शुमारी इराक़ और उर्दून में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमलों में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी बढ़ने का खदशा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज उर्दून में ईरानी हमले के मुकाम से मिलने वाले कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायजा ले रही है। यह इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। अमेरिका ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का पहले ही एतराफ़ कर चुका है। एक अमरीकी फ़ौजी लापता भी है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक की थी कि शुमाली इराक़ में एक अमरीकी फ़ौजी एहलकार 18 जुलाई को कार्रवाई के दौरान हलाक हो गया था। और दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खित्ते में अमरीकी रडार और फ़िज़ाई दिफा के निज़ाम पर जारी मिसाइल ड्रोन हमलों के दौरान एक अमरीकी F-15 तैयारे को उसके हैंगर में ही तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि एक मिसाइल दिफाई रडार निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान ईरान मुतादिद मरतबा उर्दून में भी कई मुकामात पर हमले कर चुका है। चंद घंटे कबल पेंटागन ने तस्दीक की थी कि 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों के नतीजे में फ़ौज के तकरीबन 100 एहलकार ज़ख्मी हुए। 17 जुलाई को उर्दून पर ईरानी हमलों में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतें हुई। ईरानी पासदार इनकलाब ने बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़ॉन को भी निशाना बनाने के दावे किए, लेकिन अभी बहरीनी हुकाम ने इसकी तस्दीक नहीं की। इस दौरान ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने एक बयान में कहा कि उनका मुल्क अमरीका के साथ मुकम्मल हालत जंग में है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरान भर में अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है और अवाम से उन्होंने अपील की कि वो इन नाजुक हालात को कबूल करते हुए मुल्क का साथ दें। Child waiting for treatment in a hospital or the anguish of a family whose city's vital bridge has been destroyed.
These are not merely attacks on buildings, they are wounds inflicted on the collective conscience of the Iranian people. Proposals put forward by various mediators have been conveyed to us, and we have received them. However, I would prefer not to go into the details at this stage. What I can confirm is that throughout these days, our diplomatic efforts have remained active, and a number of proposals and ideas from several mediators have indeed been communicated to us. Negotiation and war are means, not ends in themselves. Let us not lose sight of the goal. The goal is to safeguard Iran's national interests, sometimes by means of defense, sometimes through diplomacy, and sometimes through both at the same time. They will face the consequences. I believe there are people in those very areas, and they are not few in number, who are counting the moments until they can welcome them. The recent attack on the Darkovan nuclear facility, which is still under construction, constitutes a flagrant violation of all principles and rules of international law relating to nuclear non-proliferation and must be condemned by the international community. As a party to the NPT, Iran expects the IAEA Board of Governors, as well as the agency's Director General, who from time to time issues political statements regarding Iran's nuclear program, to state his position clearly by explicitly condemning the ईरान से जारी जंग के आगाज़ के बाद से ही अमेरिका में खाम तेल के ज़खायर तेज़ी से सुकड़कर 45 सालों की कमतरीन सतह पर आ गए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के चार्ट के मुताबिक मुल्क में तेल के 43 दिन की सप्लाई बाकी रह गई है। यह सतह जुलाई 1983 के बाद अब तक की सबसे कम बताई गई, जो अमेरिकी तवानाई सिक्योरिटी के लिए एक अहम इशारा समझी जा रही है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ताज़ा फिगर्स के मुताबिक इसकी तस्दीक की गई है कि कमर्शियल और स्ट्रैटेजी ज़खायर मुसलसल दबाव का शिकार हैं। 10 जुलाई तक कमर्शियल खाम तेल के ज़खायर तकरीबन 409 मिलियन बैरल रिकॉर्ड किए गए, जो कि 5 साला औसत से तकरीबन 6% तक कम हो गए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों और कम आमदनी वाले अफराद को दी जाएगी तरजीह, रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। तेलंगाना में आबी मसाइल के लिए उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी जिम्मेदार, किसानों के मसाइल में इजाफा, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम। रेवंत हुकूमत मौजूदा सरकारी स्कूलों की तादाद घटाकर 4000 करने का बना रही है मनसूबा, तालीम को आम करने के बजाय सहूलतें कम कर दी गई, साबिक़ा एमएलसी कविता का इल्ज़ाम। नीट इम्तिहान और पेपर लीक के मसले पर सियासी कशमकश जारी, मुल्क में अनारकी, स्टूडेंट्स के एहतजाज के दौरान पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सदर खड़गे की कड़ी तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हिंदुस्तानी तारीख के सबसे बड़े नौजवान मुखालिफ वज़ीर-ए-आज़म, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज पर दिया सख्त रद्द-ए-अमल। 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की तस्दीक। और एक अमेरिकी F-15 तैयारे को मार गिराया गया, पासदारान इनकलाब का दावा, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।